Today we will do Maths 2 Standard 9 Practice Set 1.1. This is a number line and coordinate of this alphabets are given below. I have to find the distance BE. To find distance BE, I have to find the coordinate of B. What is the coordinate of B here? It's 2. Coordinate of B is 2. B 2. Okay. And what's the coordinate of E? Coordinate of E is what? It's 5. Which is bigger? 5 is bigger than 2. 5 is bigger than the distance BE. We have to subtract smaller number from bigger number. Okay. So what we will get? 3. Distance BE is 3. 5 is bigger than 2. 5 minus 2 is 3. Now the second one, J. What is J? Coordinate of J is minus 2. Write the number with sign, proper sign. A is 1. A is what? 1. Now which is bigger? Minus number is smaller than a positive number. 1 is a positive number. 1 is bigger than minus 2. Okay. When 1 is bigger than minus 2, I can tell distance JA equal to, write the bigger number first, 1 minus minus 2. 1 minus minus 2. This means minus minus plus. Then what's JA? It's nothing but distance JA is 3 units. Okay. Now KO. What is K here? Let's see. K is minus 3. K is minus 3. And what is O here? O is 0. O is 0. Which is bigger? 0 is bigger than minus 3. 0 is bigger than, so distance KO is what? Bigger number minus smaller number. This will become 0 plus 3. Answer will be 3. So distance KO is 3. Okay. Now the 8th one. Q. Q का कोऑर्डिनेट कितना है? देखो -5. और B का कोऑर्डिनेट कितना है? देखो यहाँ पे 2. Q का -5. कौन सा बड़ा है? पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज बिगर देन नेगेटिव नंबर. तो डिस्टेंस QB इज इक्वल टू 2 माइनस, ये माइनस डिस्टेंस का, फिर ये -5. अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. माइनस माइनस प्लस. ये हो जाएगा 7. क्या मिला मुझे? डिस्टेंस QB 7. ओके. Distance QB is 7. Okay. Now the second sum. The coordinates are given. We have to find if coordinate of A is X and that of B is Y, then find AB. Now I have X and Y. Okay. We have to find distance AB. Distance AB. Okay. Which is bigger? 7. 7 minus 1. What is distance? 6. Distance AB is 6. Okay. Now again, which is bigger? 7 is greater than -3. Okay. तो डिस्टेंस AB क्या होगा? 7 माइनस -3. तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 10. तो मेरे को डिस्टेंस AB क्या मिल गया? डिस्टेंस AB क्या मिल गया मुझे?
10। ओके, सेम चीज यहाँ पे। अब यहाँ x दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो बड़ा कौन सा है? द स्मॉलर नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज बिगर देन द बिगर नेगेटिव नंबर। नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, नेगेटिव का छोटा नंबर बड़ा होता है। तो वापिस ए बी, तो बड़ा नंबर है -3 यहाँ पे। ओके, माइनस डिस्टेंस का फॉर्मूले का, फिर ये -6, -3 माइनस माइनस प्लस, 6 में से 3 गया तो 3, तो मेरे को डिस्टेंस ए बी क्या मिला? 3। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7. ओके, this is 4 and this is 8. Which is bigger? 4 is greater than -8. I have to find distance AB. Distance AB. 4 minus -8. 4 plus 8. 4 plus 8 minus minus plus. ये हो गया 12. तो डिस्टेंस AB क्या मिला? 12. ओके, तो ये मेरा सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ द थर्ड वन। थर्ड वन देखो क्या है। थर्ड वन इज फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द टू अदर टू इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पहले कौन सा पॉइंट किसके बीच में है, बिटवीन में है, वो बिटवीननेस फाइंड करना है, और कौन सा कोलिनियर है या नहीं है ये फाइंड करना है। ओके, नाउ लेट अस सी। I have been given distance PR 7, distance PQ 10, distance QR 3। अब दो छोटे नंबर कौन से हैं ये गिवन है मुझे, ठीक है। दो छोटे नंबर कौन से हैं? 7 और, तो उनको प्लस करेंगे पहले। ओके, तो PR, डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR। ओके, कितना होता है? 7 प्लस 3 10 होता है। ओके, डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR 10 हो गया। अच्छा, चलो इसको बोलो फर्स्ट। और डिस्टेंस PQ कितना दिया है? ऑलरेडी 10 है। मीन्स इफ वी ऐड द अदर टू डिस्टेंस वी गेट PQ का डिस्टेंस। ओके, है क्या नहीं? ये दोनों को ऐड किया तो ये 10 है और PQ भी 10 है। तो जब दोनों 10 है तो अपन क्या बोल सकते हैं? कौन सा मिडल में है? कौन सा मिडल में है? P और Q एंड पॉइंट से। PQ बड़ा है ना, तो P और Q क्या है? एंड पॉइंट से। अगर अपन एक नंबर लाइन बनाते हैं तो P और Q क्या है? एंड पॉइंट से। ओके, और क्या बीच में आ जाएगा? R। क्या बीच में आएगा? R। ओके, P एंड Q आर एंड पॉइंट्स, R बीच में आएगा। ठीक है, if I draw a number line, P and Q are end points, R बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा पॉइंट P R and Q are collinear, are कोलिनियर। ओके, क्यों कोलिनियर है? क्योंकि एंड पॉइंट, एक स्टेप अपन यहाँ पे भूल गए। डिस्टेंस PQ 10 था। ओके, तो डिस्टेंस PQ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR। ओके, तो इसको ये सेकंड यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना। ओके, यहाँ लिख सकते तुम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, पॉइंट R इज बिटवीन पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P एंड Q। ओके, फिनिश। अब यहाँ पे देखो RS दिया है 8, SC दिया है 6, RT दिया है 4। अगर छोटे वाले अपन लिख देंगे, प्लस कर देंगे ST प्लस
आर टी। तो 6 + 4 कितना होता है 10, ये फर्स्ट। अब यहाँ आर एस जो बड़ा वाला है वो कितना है आर एस, आर एस है 8, ये है सेकेंड। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना, यहाँ पे इक्वल थे इसके लिए वो कोलिनियर हो गया, यहाँ पे इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस आर एस या एस आर कुछ भी बोल सकते हो, इज नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का साइन है। तो डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब अगर ये इक्वल नहीं है तो कोलिनियर भी नहीं है। देयरफॉर पॉइंट आर एस एंड टी आर नॉट collinear, are not collinear. Okay, now the fifth one में देखो दिया है ऐसा, तो दो छोटे वाले क्या है 7 and 8, तो हम उनको प्लस करेंगे पहले। डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 7 + 8, 7 + 8 कितना होता है 15 होता है। ठीक है, तो अब मेरे को 15 मिल गया, ये इसको बोलेंगे फर्स्ट। यहाँ 15 है क्या एक्स वाई, हाँ है, तो उसको सेकंड बोल दो। एक्स वाई इज ऑल्सो 15। इफ 1 and 2 आर सेम इक्वल देन वी कैन से इट इज कोलिनियर। एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वल हो गए। दो छोटे नंबर को प्लस करके दोनों डिस्टेंस को एक बड़ा डिस्टेंस मिल गया, एक बड़ा डिस्टेंस मिल गया। इसको तुम को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते, देखो दो छोटे नंबर को प्लस करके एक बड़ा डिस्टेंस मिल गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई जेड आ कोलिनियर, आ कोलिनियर। ठीक है, एक्स वाई जेड आ कोलिनियर। अब कौन सा बीच में है यहाँ पे, देखो यहाँ जेड जेड दोनों बार आ रहा है, तो जेड इज बिटवीन एक्स एंड वाई। पॉइंट जेड इज बिटवीन x and y। ओके, तो उसको ऐसा लिखते हैं, पॉइंट z इज बिटवीन ना, बीच में आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो ये थर्ड हो गया। और द फोर्थ वन इज व्हाट, पॉइंट fifth one, sorry, fourth is a homework. Fifth is point x and y and z are collinear. It is given that it is a collinear. Okay, अब क्या बोल रहा है कि अगर ये एक्स वाई जेड कोलिनियर है सच दैट एक्स वाई कितना है, देखो एक्स वाई है 17, वाई जेड है 8, जेड एक्स नहीं मालूम, जेड एक्स नहीं मालूम, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी निकलेगी। क्या निकलेगी, दो पॉसिबिलिटी निकलेगी। अगर हम z इन बिटवीन लेते हैं, है ना, केस वन। ओके, इन केस वन वी विल टेक z बिटवीन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, इट्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट z, ये z अगर बीच में होगा, लाइज बिटवीन, कौन से दो पॉइंट के बीच में रहेगा, पॉइंट एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एंड वाई के बीच में अगर रहेगा तो देखो एक
लाइन बना देते हैं समझने के लिए, एक नंबर लाइन। ओके, सपोज यहाँ पर x है, यहाँ पॉइंट z है और यहाँ पे y। ओके, z बीच में है। तो मेरे को दिया है क्या, xy मतलब 17 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 17 है। दूसरा दिया है yz, ओके, कितना 8, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है। ओके, अब मुझे फाइंड करना है xz। क्या फाइंड करना है, xz। तो मैं बोलूँगा भाई डिस्टेंस पूरा कितना है, xy इक्वल टू डिस्टेंस, देखो इसको और इसको प्लस करूँगा तो ये पूरा मिलेगा, डिस्टेंस xz प्लस डिस्टेंस zy या yz, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास कितना है, 17 है और xz नहीं मालूम, xz वी डोंट नो, तो वैसे ही लिखना है, xz अपने को मालूम नहीं है और ये है 8। तो ये 8 यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये साइड आके, तो मेरे को xz मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 9। कितना मिलेगा xz, 9। Therefore distance xz is 9। ओके, पॉसिबिलिटी 2 भी है इसके अंदर, वो भी तुम लोग कर सकते हो, बट देयर इज नो स्पेस फॉर मी। पॉसिबिलिटी 2 मैं खाली डायग्राम बना के तुम लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या आ सकता है, एंड यू कैन डू इट फॉर योर ओन, ओके, एज अ होमवर्क। पॉसिबिलिटी 2 इज if y lies between x and z, suppose y, अब देखो ये बड़ा रहेगा y, क्यों, क्योंकि द डिस्टेंस इज बिगर, है ना, डिस्टेंस इज बिगर, इट्स 17, तो उसको बड़ा दिखाना पड़ेगा। ओके, अब y और z यहाँ कहीं होगा। अब zy कितना है, zy कितना है वो भी दिया हुआ है अपने को, 8, है ना। तो फिर डिस्टेंस क्या हो जाता है, तभी डिस्टेंस होता है, मैं खाली इक्वेशन फ्रेम करके दे देता हूँ, आप कर लेना, xz इक्वल टू डिस्टेंस xy प्लस डिस्टेंस क्या, yz, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, xz क्या हो जाएगा, xy है 17, ये है 8, 25 आ जाएगा। ओके, ठीक है, therefore distance xz is 25। ओके ओके, चलो अब सिक्स्थ वन क्या है, देखो सिक्स्थ वन का फर्स्ट वाला है कि स्केच बनाना है, प्रॉपर फिगर बनाना है। इफ ए बी सी मीन्स बी इज बिटवीन ए एंड सी, कोलिनियर है, तो मेरे को ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। चलो एक पहले कोलिनियर है तो कोलिनियर दिखा देते हैं अपन कि कोलिनियर है। एक लाइन बना देंगे, ओके, ये लाइन हो गया तुम्हारा, यहाँ पर ए है, बी इज इन बिटवीन एंड सी इज हियर। ओके, ए बी सी। अब मेरे को दिया हुआ है AC is what? AC is what? It's given 12, 11. AC is 11। देखो दिया हुआ है, वो 11 यहाँ लिख देना है। और BC दिया है, BC कितना दिया है देखो क्वेश्चन में, ओके, इट्स गिवन कितना है, 6.5। हाँ, तो फाइंड क्या करना है, ए बी। यहाँ पे तो पूरा तो दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए बी फाइंड करना है। तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। कैसे मिलता है ए सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। ओके, ए सी दिया हुआ है, इट्स 11, ए बी नहीं मालूम, write it as it is,
और ये दिया हुआ है 6.5, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आई विल गेट डिस्टेंस ए बी। कितना मिलेगा देखो, 11 माइनस 6.5 इज व्हाट, 4.5, 4.5 ए बी मिल गया। ओके, डिस्टेंस ए बी इज 4.5 units. Now it is given again, but here it is in root 3, root 7 and root 7. Okay, पहले बना लेते हैं वापस से. Let us draw the figure first for the better understanding. Okay, let us draw. X is here, Z is here, and Y is in between. Okay, अब XZ दिया है, XZ is what? XZ is what देखो दिया है 3 root 7, 3 root 7, ये XZ दिया है, और XY दिया है, इट इज गिवन, क्या दिया है भाई, इट्स रूट 7 यहां से लेकर यहां तक, इट्स रूट 7. ओके, इफ दिस इज रूट 7 एंड दिस इज 3 रूट 7, वी हैव टू फाइंड YZ. ओके, तो YZ कैसा मिलेगा, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो YZ मिल जाएगा. लेट्स सी, डिस्टेंस XZ लिख दिया, कैसे मिलता है, दोनों को प्लस करेंगे तो XY प्लस डिस्टेंस YZ. ठीक है, डायरेक्टली नहीं करना, डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसमें से माइनस, लेकिन मैं तुम लोग को इजी के लिए XZ इज इक्वल टू XY प्लस YZ. ठीक है, तो अब XZ दिया है 3 रूट 7, ये दिया है रूट 7. ठीक है, ये नहीं मालूम, लेट अस फाइंड इट आउट. 3 रूट 7 माइनस रूट 7, तो डिस्टेंस YZ कितना मिला, देखो 3 रूट 7 में से रूट 7 गया, मतलब 1 रूट 7 गया, कितना बचा 2 रूट 7, 2 रूट 7. therefore distance YZ is equal to 2 root 7. Now the seventh one is, which figure is formed by 3 non-collinear points? These are the 3 non-collinear points I am taking. Okay, suppose A, B and C are the 3 non-collinear points. कौन सा figure बन रहा है? Can you say which figure is formed? If I join these 3 non-collinear points, which figure is formed? Let us first join and then you can say which figure is this. What is this? It is a triangle. It's a triangle. A triangle is formed by 3 non-collinear points. Non-collinear points. I think we have completed 1.1. I think it's enough for the day. Thanks.